16 inaugurated by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi sir. बॉम्बे आर्ट सोसाइटीज का जो एम है स्टार्टिंग से यही रहा है कि आर्ट और आर्टिस्ट को जो भी तरीका हो वो तरीके से प्रमोट करे, टू प्रमोट द आर्ट among the masses. Before independence, there was hardly any gallery. There was no gallery in India. Okay, first gallery, Jahangir Art Gallery came in 1952, but उससे पहले भी Bombay Art Society is putting the annual art exhibition from 1889. So that show, अभी जब गैलरी थी नहीं बॉम्बे में या तो इंडिया में, तो वो जो शोज थे पहले जो एग्जीबिशन हुआ करते थे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, वो होते थे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जो 1857 में जिसकी शुरुआत हुई थी, या तो कभी कभी टाउन हॉल में जहाँ पे एशियाटिक गैलरी है, या तो ओल्ड सेक्रेटरीट सर कावजी जहांगीर हाल जहाँ पे भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। तो जब से जहांगीर आर्ट गैलरी में थी वहीं पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का शो शुरू हुआ है। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी being an old institution, our aim is always to see that there are weekly different platforms where artists can come and participate, and those platforms should be again very affordable. High cost exhibitions, when we put up the show in the gallery, even in any city, the expenses are huge. So after COVID, we thought that the capacity of young artists or even mid-career artists, some senior artists, की काफी कम हो गई है, because in COVID buyer community also stop buying art, patronage कम हो जाता है naturally, because art is a luxury, super luxury. ऐसे daily requirement नहीं हमारी, it is not a food that we need every day. So इसलिए Bombay Art Society thought after COVID that we should start some exhibition which will be affordable to each and every artist. It will be displayed here in the gallery and promoted through our use social media, because today social media एक बड़ा गुण है, हमको एक वरदान मिला है ऐसे समझ लीजिए, because without spending much money, very small money, you can promote yourself, your art, your events, exhibitions through Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and so many other platforms, websites. तो that is the motive that artists यहाँ पे participate करें कम से कम expense में, affordable rates में, so that they can reach to the wider audience, और then slowly they can come in the mainstream art. So that was the purpose we had starting art carnival, और वो काफी successful हुआ है, because this is running continuously now for 3rd year, and this month we have our 12th edition. Every year normally we do 2 to 3 editions depending on the requirement also, because sometimes artist people ask themselves after art carnival अभी चाहिए. We have very big exhibition that annual art show वो तो होते रहता है, but that show is very difficult to participate. हमारे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में करीबन 3-3.5 हज़ार एंट्रीज आती है पूरे इंडिया से, और सिलेक्शन जहांगीर आर्ट गैलरी में शो होता है तो हार्डली 250 आर्ट वर्क्स आर सिलेक्टेड, तो उसमें काफी टफ है. इसलिए देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. आपको अगर मैं तो जो यंग आर्टिस्ट है, इवन मिड करियर है, आर्ट की कोई शुरुआत नहीं है कि आप कौन से एज में आर्ट करना शुरू करते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड पेंटिंग एट द एज ऑफ 60 years, और उनकी पेंटिंग आज करोड़ों रुपए में बिकती है. तो ऐसा कोई ऐसा एज नहीं होता है कि आप ये शुरू करें. कला का ऐसा ही, म्यूजिक का ऐसा ही है. इवन फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास एग्जाम्पल्स है मोहम्मद ईरानी जैसे, कि जो काफी उम्र के बाद फिल्म में आए और सक्सेसफुल हुए हैं. तो हमारे यहाँ आर्ट क्लासेस, कम्युनिटी आर्ट क्लासेस भी चलते हैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, जहाँ पे दोस्त who have will to learn art, to do something, they can come and learn here, because it is, we call it a community art classes, because anybody from the age of 16 till the age of 70-80 years still you can walk, can come and learn, and that is happening in the Bombay Art Society. तो हमारे यहाँ आर्ट क्लासेस के प्रोफेसर सुनील रेडेकर सर भी हैं. आपको कुछ यंग आर्टिस्ट को पूछना है तो उनको भी पूछ सकते हैं. as far as जैसा प्रोफेशनल आर्ट वर्क में एंट्री करते हैं तो दिमाग में ढेर सारी चीजें होती हैं, हाउ टू गो, इतने ढेर सारे आर्टिस्ट हैं, इतने ढेर सारी चीजें हैं. तो
आप सिर्फ आपका आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करिए, व्हाट यू आर मेकिंग, देयर शुड बी समथिंग यूनिकनेस। अभी सो मच आर्ट इज मेड, तो इसमें नया क्या लाएंगे, तो कुछ तो होना है, नया स्टाइल है, सब्जेक्ट है, कलर कॉम्बिनेशन है, समथिंग है, सो दैट 100 में 100 आर्टवर्क्स में कुछ आर्टवर्क स्टैंड आउट होते हैं, स्टैंड आउट बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट। और वो कैसा करना है वो तो आर्टिस्ट ही कर पाएगा। तो दिस हैपेंस नॉट ओनली इन आर्ट फील्ड, विजुअल आर्ट फील्ड, और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। जिन्होंने शोले बनाया, दिलवाले दुल्हनिया बनाया, जो सालों साल फिल्म चली, वही डायरेक्टर्स वही प्रोड्यूसर्स दोबारा वैसी मूवी बना नहीं पाते हैं, फ्लॉप भी हो जाती है। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी में ऐसा कोई हार्मोना नहीं है कि बस ये बन लो और ये क्लिक हो जाएगा, बट व्हेन इट क्लिक्स लाइक एनीथिंग, देन यू नेवर लुक बैक। काफी एग्जांपल्स है, जो सीनियर आर्टिस्ट है आज के, जो बड़े बड़े नाम है, एम.एफ. हुसैन, रजा, सुजा, आरा, जो अभी भी लिविंग आर्टिस्ट है, कुछ लक्ष्मण श्रेष्ठा, प्रभाकर कोलते, ऑल दिस पीपल हैव वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। एंड शुरू में आपके कोई भी फील्ड ले लीजिए, थोड़ा सा स्लो जाता है, समटाइम्स रिजेक्शंस कम इन आवर वेज आल्सो। रिजेक्शन होना ये बहुत स्वाभाविक है, उससे आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बट आर्ट तो मैं हमेशा कहता हूँ, द सेकंड नेम ऑफ आर्ट इज पेशेंस। आपको आर्ट में जब आप आर्टिस्ट हो या आर्ट गैलरिस्ट हो, आपको पेशेंस रखना जरूरी है। हाउ टू सेल, देयर आर सो मेनी वेज, दिस इज वन ऑफ द वे टू एग्जिबिट। सेल हैपेंस अगेन इन अ वेरी डिफरेंट वे। जब सेल हैपेंस, इट हैपेंस लाइक एनीथिंग, बट शुरुआत में जो स्ट्रगल आती है वो सबके हिस्से में आती है। तो देयर इज नो फॉर्मूला लाइक दैट, यू प्रिपेयर समथिंग एंड देन आपका इमीडिएटली ओवरनाइट यू विल बी सक्सेसफुल। देयर आर फ्यू लकी वंस who get famous at the age of 20, 21 like Sachin Tendulkar or सब that kind of feel or value, ठीक है, वो भी मेहनत ही है। हाउ मच हार्ड वर्क दे टेक। हम लोग आज सक्सेसफुल डॉक्टर देखते हैं, दिस डॉक्टर इज वेरी सक्सेसफुल, ही चार्ज 5 लाख रुपीस फॉर ऑपरेशन, बट उनकी स्ट्रगल कोई देखता नहीं है पीछे उन्होंने क्या किया है। जब उन्होंने डिस्पेंसरी कहीं डाला हुआ है तो वहाँ कौन लोग जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो दिस हैपेंस इन एवरी फील्ड। हाउ पेशेंस। आपको कुछ सवाल पूछने होंगे तो पूछना। हमारे यहाँ आज लकीली अनंत विकास जैन सर आए हैं, जो काफ़ी साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे वो संवाद बनाएं, उनका अनुभव शेयर करें, और आर्ट में इतने धैर्य से कैसे धैर्य से टिके जाए, क्या करना होता है कि आर्टिस्ट अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे इरेस्पेक्ट ऑफ सो मेनी स्ट्रगल, और आप इतने शहरों में जाके कर रहे हैं। तो ये स्पंदन, आज जो मेरी जर्नी है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम स्पंदन इसलिए रखा गया कि वो जो आर्टिस्ट के साथ बातचीत हो रही थी और जो वाइब्रेशन हुआ था, जो स्पंदन हुआ था, उसने अंदर से मेरे को ये एक आवाज़ आई कि मेरे को कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने पूछा कि आपकी गैलरी में मैं देखता हूँ कि आर्टिस्ट होते हैं लेकिन विजिटर्स कम होते हैं, तो सेल वगैरह आपके इतने एफर्ट्स, आप कहाँ से जर्नी करके गोवा आ रहे हैं, टाइम मनी सब कुछ है, तो एक बात समझ में आई कि इस लाइफ में, इस आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने पहला शो गोवा में किया, मनोहर पारिकर सर आए और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे फेस्टिवल को एनुअल फेस्टिवल ऑफ गोवा डिक्लेयर किया, और जस्ट मैं अभी 13th एनुअल फेस्टिवल गोवा से करके आ रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही थी मीडिया के सामने कि आप सभी को, हालांकि वो मेरा पहला शो था, उन्होंने क्या देखा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने प्रेस को ये बात कही कि आप सबको, हर आर्टिस्ट को स्पंदन से जुड़ना चाहिए, ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ये बात पहले एग्जीबिशन में उन्होंने कही। शायद ये बात मैंने दिल से एक्सेप्ट की कि नहीं, इनके जो शब्द हैं वो सही होने चाहिए। आज 11 साल इंडिया के सारे राज्यों में 137 इवेंट्स हो गए मेरे। हर इवेंट स्टेट लेवल पर, चाहे वो गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में हुआ हो, मीडिया का बड़ा सपोर्ट मिला, और एक तरह से आगे ये जर्नी बढ़ती रही और हौसला भी बढ़ता रहा।
जब इंडिया में के सारे स्टेट्स में इवेंट्स हो गए तो उसको मैंने नाम दिया नेशनल आर्ट जर्नी, और आगे बढ़ने का सोचा ग्लोबल आर्ट जर्नी। ग्लोबल आर्ट जर्नी में मैंने 3 कंट्रीज में इवेंट किए, नेपाल, जॉर्जिया। जॉर्जिया ने के आर्टिस्ट ने इनवाइट किया था कि आप हमारी कंट्री में आके हमारे लिए इवेंट करो। वो ग्रैंड सक्सेस हुआ कि वहाँ के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ने मेरे को इनवाइट किया कि आप हमारे देश में आ जाओ, और जो काम आप इंडिया के आर्टिस्ट के लिए कर रहे हो हमारी कंट्री के लिए भी करो। और उसके बाद लंदन में इंडियन हाई कमीशन ने इनवाइट किया और वहाँ उन्होंने स्पॉन्सर किया गैलरी को, और ग्रैंड इवेंट हुआ। जब ये 3 इवेंट हुए तो ऐसा लगा कि अब हमें 12th edition of Art Carnival, Bombay Art Society's Art Carnival started after COVID. The idea was the artists were struggling during the COVID times, and because art sale also dried up. Because art is a super luxury, so when essential things are needed, normally सबसे पहले art suffer होती है, people stop buying art. So during that time we thought that artists को art exhibit करने के लिए कोई easy platform चाहिए which is very affordable. So this art carnival idea came forward in the Bombay Art Society, and we started it 3 years back, and this is growing like anything because every year we put up almost 2 to 3 editions. Sometimes requirement or demand comes from the field, from the artist, that your art carnival is now should again have one more edition. Then it starts. तो हमारे यहाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आर्ट कार्निवल में आर्टिस्ट पूरे इंडिया से आते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इवन स्मॉलर सिटीज़, गुजरात से आते हैं, एमपी से आते हैं, कोलकाता से काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आर्टिस्ट कैन कम एंड एग्जिबिट हियर इन बॉम्बे आर्ट सोसाइटीज़ प्लेटफॉर्म इन अ वेरी अफोर्डेबल चार्जेस, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द मेट्रो cities like Mumbai, Delhi. And they get the exposure out of this, of course, through social media and through other platforms. So the society's aim is to promote art and artists for now 136 years since it got founded in 1888. And this show will continue. The number of artists every year who are connecting with the art carnival, that figure is growing, and I wish these artists who are participating that they should continue their journey. The way it happened here today is very encouraging, and this show is now coming in a long way, and I'm sure that many more visitors will come here, and they will appreciate their art, because appreciation at the end of the day is also very important. Thank you. सर आप कुछ कहना चाहेंगे 12th आर्ट शॉर्ट में कर लीजिए क्योंकि हम लेते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीनियर जूनियर बडिंग आर्टिस्ट के कोई फ़र्क नहीं समझते, सभी को आगे लेके एक बहुत ही शानदार जर्नी है, और आर्टिस्ट को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ऐसा सपोर्ट होना चाहिए आर्टिस्ट को ताकि वो आगे बढ़ सके। भावनगर से हूँ और मेरी वाइफ का नाम सोनल है। इसने ये बनाया है। ये बनाने के लिए 47 डे लगा था। हर रोज़ 6 से 8 घंटे वो काम कर रही थी, और ये बनाने के लिए उसने बहुत टाइम दिया है। और इसके अंदर सारी डिज़ाइन बनाई, गणेश जी है, मोर है, कुंभ है, ऐसी डिज़ाइन बनाई है। और वो आर्ट भी सिखाती है, जिसको सीखना है। आज तक उन्होंने 100 से प्लस महिला को ये सिखाया है, और अभी 20 महिला ये काम भी कर रही है कि आप यहाँ आओ और ये सीखो, और मेरी वाइफ सबको सिखाती भी है। थैंक यू सर। पैशन बचपन का रहा है, तो अब मैं करीब इसमें 14 ईयर्स से मैं हूँ इसमें पेंटिंग की फील्ड में काम कर रही हूँ। और एक्चुअली मेरी सारी पेंटिंग कुछ बोलती है, कुछ संदेश देती है। तो मैं वुमेन पे ज़्यादा वर्क करती हूँ। वुमेन में काफ़ी पावर होता है, शक्ति होता है, बट वो उसको पहचानती नहीं। उसकी आदत होती है दूसरे पर डिपेंड रहने का। तो मैं पेंटिंग के थ्रू ये बताना चाहती हूँ, जैसे वो पेंटिंग के थ्रू, कि उसमें काफ़ी शक्ति है, एनर्जी है, वो खुद पर डिपेंड रहे, दूसरों पर कम डिपेंड रहे। और ये है अपने वुमेनहुड को इंजॉय करे, उसको सेलिब्रेट करे। ये पेंटिंग मेरी कर रही है, तो ये मेरा संदेश होता है पेंटिंग के थ्रू। मैम आपका नाम? विभा प्रसाद। मेरा नाम धर्मेश मकवाना है, और मूलजी नाम से मेरी पेंटिंग इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरी जो पेंटिंग्स है, ये ऑयल पेंटिंग की गई है लिनन के ऊपर।
इस जो पेंटिंग का जो मकसद है वो लोगों को एक आशा दिलाना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये 15-16 सेंचुरी में जब भी लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने निकले थे, तब जो जहाज़ से मतलब जैसे बोट से बाहर निकलते थे कि दुनिया में ग्लोब देखेंगे हम, कहाँ पर क्या है कैसे है, तो वो एक आशा के साथ जाते थे कि हाँ हमें कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। वो होप नहीं छोड़ते थे। वहाँ पानी नहीं होता था, खाना नहीं होता था, पर फिर भी उनके एक जो विल पावर, जो माइंड सेट होता था कि हाँ भाई हमें मतलब ढूंढ के रहना है, हम विश्व को ढूंढना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ग्लोब की शुरुआत की सर्च करने के लिए। तो ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि आपका माइंड सेट आप स्ट्रॉन्ग इनफ रखिए, आपको ज़रूर बिल्कुल अपनी मंजिल मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Hi, I'm Shraddha Shah from Mumbai. I draw my, so this is Tree of Life, my interpretation of Tree of Life from traditional Indian art heritage designs. This is Royal Garden from Indian designs, and I inspired from my mom's old sari, and the whole inspiration is about Sanchi art. Thank you. Thank you, sir. Self with your name and tell us about your painting. Hi, I am Shomili from Kolkata. So you can see my paintings. These four are my paintings. Mainly, I like to paint something with women's emotion, girls' emotion, and mostly figurative. You can see my paintings, some desire, maybe some hardship, whatever women are normally going through. That is my main subject for all my paintings. These paintings or all my paintings, and I really like to work with watercolor, and also these days I'm trying to do with acrylic or oil. So these are my paintings. Hope you like. And any other question for me? थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस कर दीजिए और आपके पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। So my name is Tejas Manotkar. This is a Thangka painting. Basically, it's a Tibetan canvas. So Thangka basically means a thang means a cotton surface or an open flat surface, and ka means a canvas or a painting. So this painting actually is a meditative painting. So you see there are 4 gates to a body. So the center part is the where you get nirvana, attain nirvana. So at the first gate you lift your speech, second gate you lift your body, and third you attain most of nirvana. Mostly you are awakened at this point. So you see that 4 patterns here. These are endless knots. So in Buddhism, endless knot means we are interdependent on everyone. So that's why there is no end to it. That's it. This is the mostly work done with this acrylic. And if you see, there are patterns here. So this first ring is the wisdom ring, then the space ring, earth ring. This is the earth ring, water ring, and fire ring. So this flowering rounds, this is where you offer prayers. So many people don't attend their nirvana. So they just offer flowers and all. This is where you start your journey, where you leave your speech, your body, and your nirvana is attained from you.